Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss some program related to Python programming. In our previous lecture we already discussed some programs related to Python programming related to different patterns, and in this lecture we will continue this program in which we just print different types of patterns. So that is basically a pattern as you can see on the screen. For that, code is given on the screen. You can easily see on the screen. That code is basically relate to a half pyramid with star. Okay, half pyramid with star. So look at the code. First of all, I just define the number of rows. So I just give the rows is equal to 5. You can easily see on the screen. I just define rows is equal to 5, and then there is a loop for I in range rows plus 1, 0 and minus 1. Because this is the half pyramid, and in this we want to just print the half pyramid in a decrement manner. So I just give the rows plus 1. So actually here rows is equal to 5, so rows plus 1 gives you a value 6, and the loop basically goes from 6 to 0 after a decrement of minus 1. You can easily see that minus 1 decrement is defined, and then there is a loop inside a loop for j in range 0 to I minus 1. So 0 to I minus 1 is there. It means it start from 0 and goes up to I minus 1. For example, in first case, if I is equal to 5, okay, I is equal to 6, then loop goes from 0 to 6. It means uh, value of j are 0, 1, 2, 3, 4 and 5, because as we know that last value is not included. And then what happens? Actually star will be printed, and after that after each star there is a space. So 5 star will be printed in first time. After the execution of each and every value of j, the inner loop will over, and then the second statement of the outer loop, print, will be executed, in which we just change the line, because print within a double quotes nothing is there. Actually it is a null string, so it will basically change the line, and next time 4 star will be printed, and then 3 star will be printed, then 2 and then 1. In this manner half pyramid will be displayed, and I think it is clear to all of you that how half pyramid will be displayed on a screen. You can also use the user input. I just take the value rows is equal to 5 for just to make the program very simple. You can put a user value and give as a rows is equal to int input, enter any number, and then always give a rows plus row plus 1 inside the inner loop, inside the outer loop. Okay, so that will print the half pyramid according to the numbers you have put into your program. I think it is clear to all of you. It gives you a clear idea how this program works. तो अभी आपने देखा इसमें हाफ पिरामिड को कैसे प्रिंट किया हमने। हाफ पिरामिड को प्रिंट करने का सिंपल सा तरीका ये है कि पहले तो आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए कि आपको कितनी लाइन प्रिंट करनी है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि वो जो लाइन प्रिंट करनी है आपकी, वो अपवर्ड प्रिंट करनी है, डाउनवर्ड प्रिंट करनी है। मतलब आपको ये भी समझना होगा इसमें जो प्रिंट हो रहा है तो उसमें डिक्रीमेंट है इंक्रीमेंट है। आप देखिए स्टार में डिक्रीमेंट हो रहा है, तो हमको डिक्रीमेंट के थ्रू अगर हमको डिक्रीमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा हमको, अगर हमें स्टार प्रिंट करना है तो सबसे पहले तो हमने नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट कर ली। नंबर ऑफ़ रोज़ हैं 1 2 3 4 5, 5 रोज़ हैं इसके अंदर। ओके, तो हमने रोज़ की वैल्यू 5 ले ली। आप यहाँ यूज़र इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो में 5 ही स्टार होंगे, सेकंड रो में उससे एक कम स्टार होगा, थर्ड रो में उससे एक और कम स्टार होगा, मतलब 3 स्टार होंगे, फिर एक और कम 2 स्टार, और फिर फाइनली 1 स्टार होगा। तो इस तरीके से ये प्रिंट करना है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आप या तो वैल्यू ले लीजिए इसकी, और तो हमेशा उसमें क्या होगा कि यही प्रिंट होगा। लेकिन अगर आपको यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग चलना है, तो फिर हमें ये देखना होगा वहाँ पर कि
यूज़र इनपुट के अकॉर्डिंग अगर हमें देखना है तो फिर हमें यहाँ पे यूज़र इनपुट देना होगा, ठीक है। लेकिन अभी यूज़र इनपुट इसके अंदर नहीं है, तो प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए रोज इक्वल टू 5 को इनपुट करा दिया गया है। अब पहली लाइन फॉर आई इन रेंज रोज प्लस 1, अब रो की वैल्यू 5 है तो रोज प्लस 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो स्टार्टिंग जो वैल्यू मिलेगी आई को 6 मिलेगी, और लूप कब तक चलेगा, जब तक उसे ज़ीरो ना मिल जाए, ज़ीरो इनकाउंटर्ड ना हो, और हर बार क्या इंक्रीमेंट होगा, -1। और हम जैसे जानते हैं कि लास्ट वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं होती, तो लूप तो चलेगा 6 से, आई इज इक्वल टू 6 के लिए पहली बार। दूसरी बार जब सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो किसके लिए चलेगा, लूप चलेगा फिर आपका ये आपका 6 के लिए, फिर चलेगा 5 के लिए, फिर चलेगा 4 के लिए, फिर चलेगा 3 के लिए, फिर चलेगा 2 के लिए, फिर चलेगा 1 के लिए। ओके, तो लूप इस तरीके से चलेगा आपका, और ज़ीरो के लिए नहीं चलेगा। उसके बाद आप जे के लिए देखिए, फॉर जे इन रेंज 0, i-1। तो जब आउटर लूप आई की फर्स्ट वैल्यू के लिए चलेगा, इट मीन्स आई की वैल्यू आई इज इक्वल टू 6 के लिए चलेगा, तो जे की क्या वैल्यू होगी पहली बार में, पहली बार में जे की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इसकी बिगनिंग 0 से है। और ये कब तक चलेगा, i-1 तक। मतलब जे की वैल्यू अगर आई की वैल्यू अगर 6 है, तो आई की वैल्यू 6 के लिए जो इनर लूप है वो कितनी बार चलेगा, 0 to 6। इट मीन 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि i-1 की वैल्यू 5 होगी आपकी, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, तो 5 बार लूप चलेगा, 5 टाइम्स लूप चलेगा। और जब ये 5 टाइम्स चलेगा आई की सिंगल वैल्यू के लिए, जो पहली वैल्यू होगी इसकी आई इज इक्वल टू 6 के लिए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये एक्चुअली में 5 स्टार प्रिंट कर देगा, और जो भी स्टार होंगे वो स्पेस के बाद प्रिंट होंगे, क्योंकि हमने एंड इक्वल टू स्पेस दे रखा है, डिफाइन कर रखा है, तो पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब जब ये दूसरी बार रन लूप चलेगा, तो दूसरी बार लूप चलेगा ये आई इज इक्वल टू 5 के लिए, तो आई इज इक्वल टू 5 के लिए चलेगा, क्योंकि डिक्रीमेंट हो गया। तो अब जब इनर लूप के अंदर हम आएंगे तो आई की वैल्यू 5 है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जे की वैल्यू होगी फॉर जे इन रेंज 0 to 5, मीन्स ये चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, और 4 के लिए, 5 के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4 के लिए भी नहीं चलेगा, क्योंकि 5-1 4 होता है आपका, तो 0, 1, 2, 3 इन वैल्यूज़ के लिए चलेगा ये आपका, तो 4 टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और सभी स्टार स्पेस से सेपरेट होंगे, फिर लाइन चेंज हो जाएगी एज़ यूजुअल। तो इसी तरीके से जब ये 5 के लिए चल गया आपका रन, 4 के लिए, तो फिर आपके 3, 2 और 1 के लिए भी रन होगा प्रोग्राम, और फाइनली हमको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पिरामिड हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा जो आउटपुट है ये हमें ऑलरेडी दे ही रखा है, क्योंकि हमसे यही प्रिंट करवाया गया था कि ये आपको प्रिंट करना है। तो इसके लिए छोटा सा कोड था, आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रोग्राम की बात करते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या चेंजेस किए गए हैं, ताकि वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा, और एक आइडिया दे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। आई थिंक अभी ये कोड आपको समझ में आ गया होगा, आप इसमें कुछ माइनर चेंजेस करके अपना कोई एक कोड अलग से भी बना सकते हैं। आई थिंक अभी आपको ये बिल्कुल आइडिया होगा कि किस तरीके से डाउनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में लूप को चलाया जा सकता है। तो आप चेंजेस कीजिए कोड के अंदर, और वो चेंजेस देखिए किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके आउटपुट में। ये आपको एक आइडिया देंगे कि आपका प्रोग्राम किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि जो पैटर्न वाले प्रोग्राम होते हैं उन सभी में कॉन्सेप्ट तो मायने रखता ही है, साथ साथ अभी आपको एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या चेंजेस हैं, उन सबको भी हमें थोड़ा नोटिस करना होता है, क्योंकि सभी प्रोग्राम ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमें प्रिंट क्या करना है ये मैटर करता है। तो ये एक अलग इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका, एक और प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर एक्चुअली 8 देखते हैं। ये 7th पार्ट हम ऑलरेडी अभी तक कर चुके हैं इसके। अभी तक हमने 7 डिफरेंट टाइप्स के जो आपके कोड थे उनको हमने देखा, हमने रन किया, अभी इनको समझा, और उसके थ्रू हमको आइडिया लगा कि किस तरीके से डिफरेंट पैटर्न्स को पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रिंट कराया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पैटर्न प्रिंटिंग में ये है कि हमेशा नेस्टेड लूप यूज़ होता है। तो आप इनर जो लूप होगा वो आउटर लूप की किस वैल्यू के लिए रन कर रहा है ये हमें हमेशा देखना होगा, और कितनी बार रन कर रहा है ये भी हमें नोटिस करना होगा। अगर ये हमको पता है तो
इम्प्लीमेंट करना काफ़ी आसान है। चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं पहले। तो अभी हम पाइथन 3.3 यूज़ कर रहे हैं। तो पाइथन 3.3 को गए देखा हमने, पाइथन 3.3। आप कोई और अदर वर्जन यूज़ कर सकते हैं, मैं एनाकोंडा को के थ्रू भी प्रोग्राम को रन करा सकता हूँ। पर चलिए बेसिक पाइथन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करते हैं इसको रन। ये कोड है आपका, ठीक है। इसको सेव किया मैंने, पहले से कुछ प्रोग्राम्स ऑलरेडी सेव्ड हैं इसके अंदर। एक न्यू नेम देना होगा प्रोग्राम को, अदरवाइज नहीं तो ये ओवरराइट कर देगा प्रीवियस प्रोग्राम को। तो चलिए एक न्यू नेम दिया, .py से सेव किया इसको। py एक्सटेंशन है इसका, सेव किया मैंने इसको। और सेव करने के बाद देखिए ये आउटपुट है इसका। ये अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। आई थिंक अभी ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है आपका। तो आपको सिर्फ दो इम्पॉर्टेंट बातों पर ध्यान देना है। वो पहला तो ये कि इनर लूप और आउटर लूप को आपको समझ होनी चाहिए आपको, कि जो इनर लूप है वो आउटर लूप की किस वैल्यू के लिए रन कर रहा है, वो कितनी बार रन कर रहा है। और सेकंड थिंग ये कि प्रिंट क्या करना है हमको। चलिए इस प्रोग्राम का थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। अब देखिए इसमें देखिए आप, प्रिंट राइट स्टार। अब ये कुछ प्रोग्राम आपका पिछले प्रोग्राम से ही कुछ मिलता जुलता है, आपको समझ में आ गया होगा। एक्चुअली ये दो प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है, हम दोनों को हमने एक ही साथ रन करा दिया। तो अब तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमको भी कुछ नहीं करना। अगर ये दो प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है तो हमको भी ये दोनों प्रोग्राम को कंबाइंड ही कर देना है, ज्वाइन कर देना है। अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ये आउटपुट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, एक में आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, फिर आपका स्टार्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उस तरीके से इसको प्रिंट किया गया है। चलिए प्रोग्राम को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इसको कि एक्चुअली क्या किस तरह से किया गया। आई थिंक अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से रन करते हैं। जैसे मैंने बताया दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि जो इनर लूप है वो आउटर लूप की किस वैल्यू के लिए रन कर रहा है और कितनी बार रन कर रहा है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, प्रिंट क्या कर रहा है, ठीक है। और एक बात अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, ज़्यादातर ये पूछा जाता है, मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो प्रिंट में हम लास्ट में जो प्रिंट देते हैं इसका क्या मकसद है, जब हम इसके अंदर कुछ लिखते ही नहीं है तो इसको हम क्यों लिखते हैं। देखिए जब आप प्रिंट के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे या एम्प्टी स्ट्रिंग को पास कर देंगे तो एटलीस्ट ये लाइन को तो चेंज कर ही देगा। और पैटर्न के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लाइन को चेंज करना भी एक टास्क होता है। नहीं तो लाइन चेंज नहीं करेंगे तो आपका वो सेम लाइन के अंदर ही प्रिंट करता रहेगा और पैटर्न उस तरीके से प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो ये भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके लिए /r भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। आप विद इन डबल कोट्स आप एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं, /r भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम। फॉर आई इन रेंज 0 to रोज़ हमने 5 ले ली, तो ऑब्वियसली जो लूप चलेगा 0 से रोज़ तक के लिए चलेगा। रोज़ तो 5 तो इंक्लूड होगा नहीं, लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। और इंक्रीमेंट दे नहीं रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। देन 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए भी चलेगा, पर 5 के लिए नहीं चलेगा क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0 के लिए, तो हम फिर इनर लूप के अंदर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा फॉर j इन रेंज 0 to i+1। अब ये जो इनर लूप है ये आउटर लूप की वैल्यू पर ही डिपेंडेंट है। और आउटर लूप की किस वैल्यू पर डिपेंडेंट है, ये 0 से चलेगा और ये i+1 दे रखा है। देखिए i+1 दे रखा है, आई किसकी वैल्यू है, आउटर लूप की। और आउटर लूप की अभी वैल्यू क्या है, 0। तो 0 है तो i+1 कितना हो गया, 1। तो एटलीस्ट ये लूप जो चलेगा j इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा। और जब ये j इज इक्वल टू 0 के लिए चलेगा तो एक स्टार प्रिंट कर देगा, और स्टार प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में आप देखिए लाइन चेंज कर देगा। और ये हमने जो दे रखा है ये आपका प्रिंट /*, ये फर्स्ट जो लूप है फॉर आई इन रेंज इसका पार्ट है। तो अभी होगा क्या, अभी आपका सिर्फ एक स्टार प्रिंट हो जाएगा पहली बार में, ठीक है। दूसरी बार में जब लूप i इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा तो इनर लूप की वैल्यू हो जाएंगी 0 1। इट मीन्स इनर लूप j 2 टाइम चलेगा आपका 0 के लिए और 1 के लिए, और 2 टाइम चलेगा तो 2 स्टार भी प्रिंट कर देगा आपको, 2 स्टार प्रिंट कर देगा। 2 स्टार प्रिंट करने के बाद फिर आपका स्टार प्रिंट करने के बाद लाइन चेंज कर देगा, फिर 3 स्टार प्रिंट करेगा, फिर 4 स्टार प्रिंट करेगा,
5 नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि ये 4 तक ही चलेगा, तो 0 प्रिंट करेगा। 0 के लिए जब लूप चलेगा तो 1 स्टार प्रिंट करेगा, 1 के लिए 2 स्टार प्रिंट करेगा, 2 के लिए 3 स्टार प्रिंट करेगा, ठीक है, 3 के लिए 4 स्टार प्रिंट करेगा और 4 के लिए 5 स्टार प्रिंट करेगा। और उसके बाद जब ये लूप ओवर हो जाएगा तो फिर दूसरा लूप चलेगा आपका फॉर आई इन रेंज। तो हमें इसमें याद यही रखना है कि आई की वैल्यू क्या है और उसके अकॉर्डिंग जे की क्या जे कितनी बार लूप रन कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी फर्स्ट केस की बात करूँ तो आई की वैल्यू 0 है, तो जे आपका सिर्फ एक बार चलेगा, यानी आई इजिकल टू 0 के लिए जे एक बार चलेगा। आई इजिकल टू 1 के लिए जे 2 टाइम चलेगा, आई इजिकल टू 2 के लिए जे 3 टाइम चलेगा, आई इजिकल टू 3 के लिए जे 4 टाइम चलेगा और आई इजिकल टू 4 के लिए जे 5 टाइम्स चलेगा, यानी 5 स्टार प्रिंट करेगा। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। और इसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है, एक तो स्टार प्रिंट करने के लिए यूज़ हो रहा है और दूसरा लाइन चेंज करने के लिए हो रहा है। तो अभी आपका फर्स्ट पैटर्न मिल जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, अब हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी प्रिंट करना है, तो हम कोड को जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है। आई की वैल्यू को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो हमने अब ये जो लोअर पार्ट है इसका, ये आपका लोअर पार्ट को प्रिंट करने के लिए हम हमारा ये जो सेकंड लूप है ये रन करेगा। ये कैसे रन करेगा, हमने कहा लिखा है इसके अंदर फॉर आई इन रेंज रोज़ कॉमा 0 कॉमा -1। तो रोज़ की वैल्यू तो 5 है, फिक्स है। तो अभी ये 5 के लिए चलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 के लिए ही चलेगा और कब तक चलेगा, जब तक कि 0 ना मिल जाए और हर बार डिक्रीमेंट होगा। तो 5 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, ठीक है, 2 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा। इस तरह से ये आपका रन होगा। तो जब फर्स्ट वैल्यू सेकंड लूप की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पार्ट की प्रोग्राम की, तो आई की वैल्यू जब 5 होगी तो जब अब हम जब इनर लूप के अंदर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा जे इन फॉर जे इन रेंज 0 आई -1, ठीक है। तो आई की वैल्यू तो 5 है, तो जे की क्या वैल्यू हो जाएगी, जे की वैल्यू हो जाएगी I-1 की वैल्यू निकालिए आप, I-1 की वैल्यू हो जाएगी 5 - 1 इट मीन्स 4। तो जे की वैल्यू हो जाएंगी 0 1 2 3, ये वैल्यू हो जाएंगी। लास्ट वैल्यू तो इंक्लूड होती नहीं है, तो 0 1 2 3, ठीक है। 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी और 4 वैल्यूज़ के लिए स्टेटमेंट चलेगा प्रिंट स्टार। तो 4 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएगा आफ्टर गिविंग स्पेस। तो एक स्टार प्रिंट होने के बाद वो स्पेस देगा और उसके बाद 4 स्टार आपके प्रिंट हो जाएंगे, फिर 3 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 2 स्टार प्रिंट होंगे, फिर 1 स्टार प्रिंट होगा और फाइनली हम लूप से बाहर आ जाएंगे और ये हमारा पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअली ये दो प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और इसके थ्रू हमने इसको प्रिंट कराने की कोशिश की है, एक पैटर्न को प्रिंट कराने की कोशिश की है। आप इसको रन कराइए, देखिए इसके अंदर माइनर चेंजेस कीजिए, देखिए प्रोग्राम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी प्रोग्राम के लिए, समझ में आएगा कि पैटर्न किस तरीके से प्रिंट होते हैं और सबसे अच्छी बात ये समझ में आएगी कि लूप किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि हमारा यहाँ जो मेन मोटिव है वो ये समझना है कि नेस्टेड लूप किस तरीके से वर्क करते हैं। आउटर लूप के लिए इनर लूप की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके से रन करता है, ये मेन कॉन्सेप्ट है समझना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जहाँ तक लूप की बात है, पाइथन प्रोग्रामिंग की बात है, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए ये एक प्रोग्राम हो गया आपका, आई थिंक अभी ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। एक और प्रोग्राम की बात करते हैं और देखते हैं, पहले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाए कि आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट एग्जैक्टली क्या शो होगा, किस तरीके से। हालांकि हम सबको पता है कि आउटपुट क्या शो होगा, प्रोग्राम को आप ट्रेस करना जानते ही हैं, ठीक है, और वो आना भी चाहिए सबको, अगर नहीं आता है तो कि प्रोग्राम को देख के हम बता सकें कि क्या आउटपुट आने वाला है, ठीक है। चलिए पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये पिछला प्रोग्राम था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया न्यू प्रोग्राम से, सेव किया है। सेव करने के बाद रन कराते हैं, देखा हमने रन कराया इसको, ये इसका आउटपुट है। आई थिंक अभी आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होगा और कोड के साथ आपको इसका आउटपुट भी समझ में आ रहा हो। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार एग्जीक्यूट कीजिए, ये आपको आइडिया देगा कि किस तरीके से ये लूप वर्क कर रहा है आपका। अब ये प्रोग्राम नंबर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके अंदर हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट किया है स्टार की हेल्प से, ठीक है। और ये हमारा पैटर्न, प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम नंबर 9 है। तो अभी इसके अंदर हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट करना है स्टार की हेल्प से। तो सबसे पहले तो हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया जस्ट, और ये मैसेज क्या है, ये मैसेज सिंपल सा है कि प्रिंट इक्विलेटरल ट्रायंगल पिरामिड यूजिंग स्टार, ठीक है। उसके बाद हमने एक साइज़ ले लिया, किस साइज़ का हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं।
तो साइज़ ले लिया हमने यहाँ पर, साइज़ इक्वल टू 7। फिर एक वैल्यू ली m, ठीक है। तो m को हमने डिफाइन किया है 2 मल्टीप्लाइड बाई साइज -2। इट मीन्स यहाँ पर m की जो वैल्यू होगी वो 14 - 2 इट मीन्स 12 होगी। अभी क्यों होगी ये अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो आपने लूप चलाया वो चलाया फॉर i इन रेंज 0, साइज। तो लूप 0 से चलना स्टार्ट होगा, साइज तक जाएगा, और साइज की वैल्यू क्या है 7। इट मीन्स 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए चलेगा। इट मीन्स लूप टोटल 7 टाइम्स चलेगा। जब हम अंदर आएंगे तो अंदर लूप किसके लिए चलेगा, फॉर j इन रेंज 0, m। अब यहाँ पर m है, जो m हमने डिफाइन किया था 2 इंटू साइज -2, ठीक है। तो ये लूप चलेगा 0 से m के लिए। इट मीन्स ये चलेगा आपका 12 टाइम्स, 12 टाइम्स चलेगा। अब देखिए इसको हमने लिया क्यों, इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि कुछ को हमको एम्प्टी प्रिंट करना है, ठीक है, कुछ स्पेसिस को, कुछ को हमको स्टार से प्रिंट करना है, तभी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट हो पाएगा। तो हमने प्रिंट किया आपका, क्या प्रिंट किया हमने, प्रिंट किया आपका स्पेस। तो हमने उतनी बार स्पेस प्रिंट कर दिया, तो 12 टाइम्स स्पेस प्रिंट हो जाएगा आपका। अब 12 टाइम्स स्पेस प्रिंट होने के बाद m की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम उसको रन कराएंगे। m की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो m की वैल्यू पहले 12 थी, अब 11 हो जाएगी। हर बार आपका डिक्रीमेंट होता जाएगा आपका। और तो ये बेसिकली जो पहला जो j इज इक्वल टू इन रेंज 0 to m दिया गया है, ये स्पेस देने के लिए किया गया है, क्योंकि बिना स्पेस के हम इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट नहीं कर सकते, हमें स्पेस उतना देना होगा। तो हमने जैसे पहली बार में 12 स्पेसिस को दिया, उसके बाद हमको कुछ ना स्टार प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल स्टार ही प्रिंट करना है। तो हमने फिर सेकंड लूप को हमने देखा, तो सेकंड लूप में लिखा हुआ फॉर j इन रेंज 0, i+1, और i की वैल्यू अभी है 0, ठीक है। तो i+1 की वैल्यू होगी 1। तो हमें पहली लाइन में तो 1 स्टार ही प्रिंट करना था, स्पेस तो हमने दे दिया, ठीक है। तो स्पेस देने के बाद हमको ओनली 1 स्टार प्रिंट करना था, 12 स्पेस दे दिया, और उसके बाद हमको स्टार प्रिंट करना है, तो हमने लिखा 0, i+1। तो 0, i+1, तो i की वैल्यू तो अभी हो जाएगी 1, तो लूप तो ओनली 1 टाइम चलेगा। ओनली 1 टाइम चलेगा तो सिंगल स्टार प्रिंट हो जाएगा, और फिर लाइन चेंज हो जाएगी। तो जब लूप ये पहली बार चल चुका होगा, तो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने किया ये कि आपने 12 तो स्पेस प्रिंट किए, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं होगा स्क्रीन पे, तो कुछ दिखाई नहीं देगा, स्पेस तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके लिए हमने लूप चलाया था, और उसके 12 स्पेस के बाद आपका एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये लूप जब सेकंड टाइम चलेगा, अब वो वहाँ सोचना थोड़ा सा पड़ता है आपको। जब ये लूप सेकंड टाइम चलेगा, तो अभी m की वैल्यू में तो डिक्रीमेंट हो गया, तो m की वैल्यू हो जाएगी अब 11। तो लूप अब इसमें क्या होगा, इसमें अभी जब m की वैल्यू कम हो जाएगी, तो अब स्पेस पिछली बार से कम होंगे। देखिए लिखा भी हुआ है वहाँ पर कमेंट की फॉर्म में, डिक्रीमेंटिंग m आफ्टर ईच लूप, ठीक है। तो अभी आपका 11 टाइम्स आपका ये स्पेस प्रिंट होगा, और फिर जब हम बात करेंगे स्टार की, तो स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, स्टार 2 टाइम्स प्रिंट होगा, तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे आपके। इस तरीके से आपका ये चलता जाएगा। तो हमेशा हर बार एक स्पेस कम होता जाएगा और एक स्टार बढ़ता जाएगा, और इसी की हेल्प से आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट होगा। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है अभी भी, तो प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है। और प्रोग्राम के अंदर चेंजेस किए, जिस लाइन में भी आपको डाउट है वैल्यू चेंज करके देखिए, आपको क्लियर आईडी दे देगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम वर्क करता है। चलिए पहले एग्जीक्यूट करके देखते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपको ये प्रोग्राम कम्प्लीटली समझ में आया है या नहीं आया है। तो अब ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम को रन किया मैंने, देखा यहाँ पर, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रिंट हो गया। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रिंट किया गया, ठीक है। तो ये प्रोग्राम था इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड। अभी एक लास्ट प्रोग्राम और है पैटर्न प्रिंटिंग से रिलेटेड। अभी हमको इसमें क्या करना है, अभी तो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट किया था, अब हमको इसी प्रोग्राम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करना है। सेम प्रोग्राम है, बट बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो देखिए प्रोग्राम में अब आप समझ सकते हैं क्या होने जा रहा है। तो अभी जस्ट हम कॉन्सेप्ट को जस्ट रिवर्स कर देंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे थोड़ा सा।
और इस माइनस चेंजेस के साथ हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट कर लेंगे प्रोग्राम को। तो पहले इंक्रीमेंट था तो ऑब्वियसली इस बार डिक्रीमेंट ही होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में करना है। तो ये प्रोग्राम है आपका, और ये प्रोग्राम आपको देखिए रोज इज इक्वल टू 5। तो पिछली बार हमने m लिया था, यहाँ हमने k ले लिया, कोई मैटर नहीं करता, फॉर्मूला सेम ही रहेगा 2 इंटू रोज माइनस 2। तो अभी ये कितना हो जाएगा, पिछली बार हमने आई थिंक 6 लिया था, तो नहीं 7 लिया था, 7 लिया था, तो आपकी वैल्यू जो आ रही थी m की वो 12 आ रही थी। तो फॉर्मूला पहली 2 लाइन सेम है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है इसके अंदर कि हमने रोज़ की वैल्यूज़ को पिछली बार ज़्यादा लिया था, इस बार थोड़ा सा कम लिया है। के का और एम का फॉर्मूला तो सेम है, वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका। तो बात वही है, आपको एक तो नंबर प्रिंट करना है या एक स्टार है, जो भी कुछ आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो प्रिंट करना है, और स्पेस देना है, स्पेस का ध्यान रखना है। तो लूप आपका एक तो स्पेस के लिए चलेगा और एक आपका स्टार के लिए चलेगा, स्टार कितनी बार प्रिंट होगा। तो पहला तो जो चलेगा वो आपका स्पेस के लिए चलेगा। तो फर्स्ट टाइम तो हमको कोई स्पेस देना नहीं है क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए हमने लूप कैसे चलाया, हमने लूप के लिए लिखा है फॉर आई इन रेंज रोज़ कॉमा -1, और रोज़ की वैल्यू है 5, ठीक है। और ये -1 का मतलब है 0 तक चलेगा आपका। तो ये चलेगा 5 के लिए, फिर चलेगा 4 के लिए, फिर चलेगा 3 के लिए, फिर चलेगा 2 के लिए, फिर चलेगा 1 के लिए, फिर चलेगा 0 के लिए, क्योंकि हर बार डिक्रीमेंट हो रहा है, -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अंदर आएंगे, अंदर देखेंगे, अंदर जे आपका एक नेस्टेड लूप है फॉर जे इन रेंज के की वैल्यू है जैसे मैंने बताया, तो 5 इंटू 2 ये होगा 10 माइनस 2 8, 8 से लेकर ये चलेगा 0 तक के लिए, और हर बार 1 का डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो अभी ये आपका 8 स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगे उस तरीके से। तो पहला तो स्पेस को प्रिंट कर रहा है, और सेकंड एज यूजुअल स्टार को प्रिंट कर रहा है। तो सेकंड लूप से हम स्टार प्रिंट करेंगे, या फर्स्ट लूप से जो हम प्रिंट करेंगे, फर्स्ट लूप से हम स्पेस प्रिंट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सेम है, और बस इसके अंदर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो किया है। चलिए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है आपका। ये प्रोग्राम है आपका फाइल, ये मैंने इसको किया रन। ये देखिए ये प्रोग्राम है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो पहला लूप स्पेस को, सेकंड लूप आपका स्टार को प्रिंट कर रहा है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने ग्लिटर ट्रायंगल को प्रिंट करने की कोशिश की है इसके अंदर। तो आई थिंक अभी आपको कुछ समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा आपको किस तरीके से प्रोग्राम को किया जाता है, कैसे प्रोग्राम को रन किया जाता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है प्रोग्राम के रिलेटेड वो यही है कि आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि जब हम पैटर्न प्रिंट कराते हैं तो हमेशा मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सभी केसेस में ऐसा ही होता है कि एक इनर लूप होता है, एक आउटर लूप होता है। आपको ध्यान नहीं रखना है कि इनर लूप की किस वैल्यू के लिए आउटर लूप कितनी बार चल रहा है, पहली बात। सेकंड, आपका प्रिंट क्या कर रहे हैं, और थर्ड, आपको लाइन भी चेंज करनी है, तो उसके लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट आप हमेशा रखिए, जिसमें प्रिंट में डबल कोटेशन मार्क के अंदर आप एक नल स्ट्रिंग रख सकते हैं, या फिर /r भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो अभी ये हमने इसके अंदर 10 प्रोग्राम्स को देखा डिफरेंट, ये लास्ट तक हमने अभी 10 डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट करा के देख चुके हैं हम। तो अभी ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो चुका है, लूप भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ, ठीक है। अगली बार हम लिस्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियोज़ में, तो वहाँ लिस्ट से रिलेटेड प्रोग्राम होंगे। और अगर आपको लूप अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो अभी आपको ये समझिए कि पाइथन में फिर आपको कोई मुश्किल होने वाली नहीं है, क्योंकि नेस्टेड लूप के थ्रू अगर आप प्रोग्राम को बना पा रहे हैं तो इट मीन्स आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कोड की। तो इन प्रोग्राम को रन कीजिए, बार बार रन कीजिए, और कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कुछ नया प्रिंट करने का। फॉर एग्जांपल अब ये प्रोग्राम है, इसमें स्टार प्रिंट किया गया, आप इसमें नंबर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर को भी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट कर सकते हैं, तो कोड को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप प्रिंट करने के लिए काफ़ी पैटर्न्स हैं आपके पास, और उनमें से कोई भी एक पैटर्न आपको प्रिंट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक प्रोग्राम थे, इनको इम्प्लीमेंट करके आप किसी दूसरे नए पैटर्न को प्रिंट करा सकते हैं।
तो ये मेन इंपॉर्टेंट बातें थी आज की वीडियो से रिलेटेड। आई होप अभी आपको ये समझ में आया होगा। रन कीजिए प्रोग्राम को और देखिए, समझिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।